So welcome dear students in your class. Today we are going to discuss the questions related with Ohm's law and resistance. Dear students, this is your fourth class of chapter electricity of class 10th. So there was a scientist named George Simon Ohm from Germany. He was from German physicist और जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 में एक लॉ दिया जिसको हम ओम्स लॉ कहते हैं. दिस इज द पिक्चर ऑफ जॉर्ज साइमन ओम. As according to Ohm's law, he gave the relationship between the potential difference V and the current I, and he said the potential difference between the two ends of a metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through that wire, where the physical conditions of the wire such as length, temperature, etc. remain constant. That V is directly proportional to I, and if we just remove this proportionality, then it will equals to V is equals to IR, where R is the resistance, I is the current, and V is the potential difference. So what is R? R is a constant of proportionality, and it is known as the resistance of the wire. Resistance of wire, and it always opposes the current. As you can see here, V upon I is equals to R. R is inversely proportional to resistance. So resistance always opposes the current I. What is the unit of resistance? The unit of resistance is voltage की unit होती है potential difference की volt, और electric current की होती है ampere. Then it unit will be volt per ampere, और you can say 1 ohm. जॉर्ज साइमन ओम को रेस्पेक्ट देने के लिए इसकी यूनिट को ओम रखा गया. Next is there are two type of circuit. One is the ohmic circuit, second one is the non-ohmic circuit. Ohmic circuit क्या होते हैं? Ohmic circuit वो होते हैं जो Ohm's law को follow करते हैं. That is V is directly proportional to I. If we increase the V, then current will be increased. If we decrease the V, then current will be decreased. Second is non-ohmic circuit. नाम से clear है, non-ohmic it means जो Ohm's law को follow नहीं करते. Then define resistance. Resistance is an intrinsic property of a conductor which always try to opposes the current. As you can see here, current is inversely proportional. Then resistance unit is ohm, so define 1 ohm. So student, 1 ohm is equals to 1 volt upon 1 ampere. It means if we have a wire AB and the two ends of the wire is A and B, then if the potential difference between the two terminal of an electric conductor of is 1 volt, यहाँ पे potential difference कितना है? 1 volt, and the current flowing through the wire is 1 ampere, then the value of resistance will be 1 ohm. ऐसे condition में 1 ohm resistance present होगा. क्लियर? यूनिट की बात करते हैं. बिगर यूनिट होती है किलो ओम, दैट इज 10 टू द पावर 3 और 1000 ओम. 1 मेगा ओम 10 की पावर 6 ओम. 1 मिली ओम 10 की पावर माइनस का 3 ओम. स्टूडेंट, देयर आर टू टाइप ऑफ रेजिस्टेंस. वन इज कांस्टेंट रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, टाइम के साथ चेंज नहीं होती. आप यहाँ पर देख भी सकते हैं. दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजिस्टर. इसके ऊपर कुछ कलर कोडिंग्स होती हैं, जिस कलर कोडिंग की हेल्प से आप इसको यहाँ पर अगर देखें, ये कुछ कलर कोडिंग दी हुई है यहाँ पे. इस कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग आप इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, जो कि हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. सो कांस्टेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, 2 ओम, 1.5 ओम, 3 ओम एक्सेट्रा, और इसको आप इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं. एक्चुअल में रेजिस्टेंस होता है ये. ठीक है. दूसरा रेजिस्टेंस होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू वेरी करती है. जैसे पहले 1.2 ओम है, उसके बाद 1.3 ओम है, उसके बाद 1.4 ओम है, उसके बाद 1.5 ओम है. तो वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए आप इसका यूज करते हैं, रियोस्टेट का यूज करते हैं, एज यू कैन सी हियर इन द डायग्राम. ओके, ये डायग्राम में आपने दिखाया हुआ है रियोस्टेट को. स्टूडेंट, आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस को डील करते हैं which are based upon Ohm's law. Okay, the very first question is plot the graph V versus I and also calculate the resistance R from the graph. आपको यहाँ पे करंट और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट्स में दिया हुआ है. करंट आपको एम्पियर में दी हुई है, जैसे 2.4 एम्पियर, 0.2 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, 0.6, 0.8 एंड 1.0. कॉरस्पॉन्डिंग
voltage are 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 and 2.5. So as you can see here, if we just plot x-axis and y-axis, x-axis and y-axis, and we just have to draw the coordinates here, like the value of current first is, the first value of current is 0.2, so 0.2 will be here. Second is 0.4, the 0.4 will be here. Then third is 0.6, 0.6 will be here. Then 0.8, 0.8 will be here, and so on. Okay, x एक्सिस पे आपको करंट दिया हुआ है जो कि एम्पियर में है. y एक्सिस में आपको वोल्टेज दिया हुआ है. दैट फर्स्ट इज 0.5 वोल्ट्स, so 0.5 वोल्ट, देन 1.0, देन 1.5, देन 2.0, देन 2.5. इस तरह ये y एक्सिस में आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चलेगा जो कि वोल्ट्स में दिया हुआ है. So by Ohm's law we know that V is equals to IR, okay, and V upon I is equals to R. So if we just calculate delta V upon delta I, then it will represent R. So this straight line gives us the value of resistance R, okay. 1.0 और 1.5 के बीच में अगर आप यहाँ पर डेल्टा V निकालते हैं तो डेल्टा V कितना आता है, 1.5 माइनस 1.0, इट मीन्स 0.5 वोल्ट. ये आपका डेल्टा V आ जाएगा यहाँ पर, दैट इज 0.5 वोल्ट. इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर 0.6 और 0.4 के कोरस्पॉन्डिंग डेल्टा I निकालते हैं तो कितना आता है, 0.6 माइनस 0.4, इट मीन्स 0.2 एम्पियर. दिस इज योर डेल्टा I. ये आपका डेल्टा I आ जाएगा 0.2 एम्पियर. और अगर आप यहाँ से ये थीटा लेते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए ABC. राइट एंगल ट्रायंगल ABC में आप tan थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो tan थीटा विल बी BC अपॉन AC. इट मीन्स डेल्टा V अपॉन डेल्टा I. और डेल्टा V अपॉन डेल्टा I अभी हमने आपको बताया है रेजिस्टेंस होता है. सो इट विल इक्वल्स टू M इज इक्वल्स टू tan थीटा. तो देखिए डेल्टा V की वैल्यू आपके पास 0.5 वोल्ट आ गई थी. डेल्टा I की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 0.2 डेसिमल से डेसिमल हटाएंगे 5/2 और इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 2.5 ओम. तो द रेजिस्टेंस विल बी 2.5 ohm. Okay, then we have which one has high resistance. किसका रेजिस्टेंस हाई है? आपको दो तरह के यहाँ पे ग्राफ दिए हुए हैं, ग्राफ 1 एंड ग्राफ 2. दोनों में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट ग्राफ में वोल्टेज आपको y एक्सिस में दिया हुआ है, करंट आपको x एक्सिस में दिया हुआ है. सेकंड ग्राफ में जस्ट अपोजिट क्या हुआ है, करंट आपको y एक्सिस में दे दिया और वोल्टेज आपको x एक्सिस में दिया हुआ है. और दो आपसे वायर पूछे हुए हैं, एक A है और B है, कि बताइए किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, RA का रेजिस्टेंस ज्यादा है या RB का रेजिस्टेंस यहाँ पर ज्यादा है. ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ है. क्लियर? तो इसको देखेंगे यहाँ पर. डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन में वोल्टेज जिस भी एक्सिस की तरफ दी गई है उसी वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे θ1 is greater than θ2 of wire A, then A wire has more resistance as comparison to B wire. इसका रीजन क्या होता है? इसके रीजन को हम देख सकते हैं. M इज इक्वल टू होता है tan थीटा और tan थीटा की वैल्यू होती है डेल्टा V अपॉन डेल्टा I फ्रॉम दिस कर्व. ओके, एंड डेल्टा V अपॉन डेल्टा I होता है आपका R, दैट इज रेजिस्टेंस. सेकेंड ग्राफ में देखिए, सेकेंड ग्राफ में आपसे कहता है वोल्टेज इज ऑन एक्स एक्सिस, और जिस साइड वोल्टेज होती है उसी साइड का रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा. तो इट मींस बी वायर हैज मोर रेजिस्टेंस एज कंपैरिजन टू ए वायर. रीजन क्या होगा? रीजन में आप देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन होगी दिस, तो ये आपको देगा डेल्टा आई, क्योंकि वाई एक्सिस में आपको करंट दिया हुआ है. सेकंड एक्स एक्सिस में आपको वोल्टेज दिया हुआ है, इट विल गिव अस डेल्टा वी. तो इस स्लोप से आपको क्या मिलेगा? ये जो स्लोप है, दिस स्लोप विल गिव अस डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी, एंड डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी क्या होता है? 1 अपॉन आर. और ये अगर आप m इज टू tan थीटा लगाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा यहाँ पे. क्लियर? तो ऐसी कंडीशन में जिसका स्लोप कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. स्लोप कम किसका है? θ2 का स्लोप कम है, इसलिए RV का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट
पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 10 वोल्ट और रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 5 ओम। तो बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आपके पास पता है V इज इक्वल्स टू IR होता है, देन I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। I और V के लिए आपको दिया हुआ है 10 वोल्ट और करंट ये रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 5, तो 5 टू जा 10, तो देन द करंट विल बी 2 एम्पियर। इस तरह के क्वेश्चन में आपको 3 वेरिएबल्स दिए गए हैं V, I और R, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। इन्हीं भी 3 वेरिएबल्स में से 2 वेरिएबल को देखेगा और थर्ड वेरिएबल आपसे क्वेश्चन में पूछेगा। ये आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है CBSE बोर्ड एग्जाम में। आगे चलते हैं। देन MCQ बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे आपके पूछे गए हैं, 1 मार्क्स में पूछे जाएंगे CBSE बोर्ड एग्जाम में। द इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर फ्लोज, कि अगर आप ये कंडक्टर लेते हैं, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कौन कराता है? तो हमने आपको बताया था फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आंसर विल बी 1। प्रोटॉन्स नहीं कराएंगे, मास नहीं कराएगा और न्यूट्रॉन्स नहीं कराएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 5, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि आपके MCQ में पूछा जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट I। तो अभी हमने देखा था कि V और I में अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, सो इट आंसर विल बी अ स्ट्रेट लाइन। और जो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं ओमिक सर्किट। अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था। ओमिक सर्किट क्या होते हैं? जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, दैट इज V दैट इज प्रोपोर्शनल टू I और V इज इक्वल्स टू IR। सर्कल नहीं होगा, सेमी सर्कल नहीं होगा और डायरेक्शन चेंज तो होगी ही नहीं। देन क्वेश्चन नंबर 6, नेम द फिजिकल क्वांटिटी। उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताइए हुज यूनिट इज वोल्ट पर मीटर। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, वोल्ट पर मीटर, आप देखिए वोल्ट किसका यूनिट होती है? पोटेंशियल डिफरेंस की। और एम्पीयर किसकी यूनिट होती है? करंट की। तो V अपॉन I, V अपॉन I क्या हो जाएगा? R, और R क्या होता है? रेजिस्टेंस। सो द फिजिकल क्वांटिटी इज द डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये आपके लिए होमवर्क में है। How much current will an electric bulb draw from 220 volt source if the resistance of the bulb is 1200 ohm? जो करंट आपको फाइंड आउट करना है, वोल्टेज आपको दिया हुआ है 220 वोल्ट एंड द रेजिस्टेंस इज 1200 ओम। तो ओम्स लॉ का यूज कीजिए और यहाँ से आप करंट फाइंड आउट करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।